guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लास्ट 15 to 20 डेज की स्ट्रैटेजी फॉर क्लैट 2024. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है? तो ये आपको मिस आउट नहीं करनी चाहिए. चलिए देखते हैं आज की वीडियो का एजेंडा. Okay? Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Let's talk about the agenda of today's video. We have a long agenda going on today, but very important. We are going to talk about the important topics of each section because I don't want my kids to waste time. Okay, we are not wasting a second on the topics that are not important from now on. Thereafter, how much to score in CLAT? Yes, cutoff. I'm going to discuss cutoff of almost all the NLUs, giving you an idea that अगर इतना score कर लोगे तो हो जाएगा, right? Which is going to give you a lot of confidence. Yes, time to each section. That is, we come over to how to attempt the exam. की attempt कैसे करना है, time management की बात करें कि कितना time कौन से section को देना है, ये हम discuss करेंगे इस video में. So very important. I'm telling you this beforehand so that you can practice, right? It is very important to practice time management also, right? Then section wise tips and tricks, how to attempt again, how to attempt each section, mistakes, common mistakes that students have committed and Loggerians are not going to make those mistakes, how to handle negative marking. We are going to discuss two formulas, right? So I'm going to tell you that. Thereafter, sequence in which you should attempt the paper, how to practice for the exam that you're able to complete the exam on time, right? A lot of you might be facing this problem of time management, right? Time management might be a problem for you that you're not able to complete your mock test within 2 hours. Some of you are not able to sit and focus for 2 hours altogether. You're like, I cannot sit for 2 hours in the exam. That's a thing for me. How to increase the score in mock tests? We are going to discuss that. Anxiety, worry, and lots of motivation by Loggery in this video. So let's get started. This is going to be a little longer video, but a very important one. Let's get started with today's session. Types of students, मतलब जिनकी preparation कहाँ पे पहुंची है, उनके अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स इस टाइम पे होंगे. एक जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और वो 15 डेज प्लान फॉलो करेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे. यस, आप जीरो से प्रिपेयर कर सकते हो. क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आप 15 डेज के अंदर भी कुछ ना कुछ कर सकते हो. आपको कोई ना कोई NLU मिल जाएगा. स्टार्टेड द प्रिपरेशन बट सिलेबस इज नॉट कंप्लीट. अब जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, यू हैव टू मेक श्योर कि जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए ना 20 to 25 डेज में कैसे क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपने देखना है कि क्या आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करो. अभी थोड़ी देर में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा रिवाइज करवा दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. मतलब अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जंप हो जाओगे, जो कि है आपका रिविजन. ठीक है ना? पूरा सिलेबस रिवाइज करना, अपने नोट्स में से जो बुक्स में नोट्स बनाए हुए नहीं बनाए हुए तो जल्दी फटाफट से जो बुक जहाँ से स्टडी रिसोर्स है वहाँ से फटाफट पढ़ना. ठीक है? मॉक्स अटेम्प्ट करना. और तीसरी जो चीज़ करनी है, मॉक्स को एनालाइज करना. क्या करना? मॉक्स को एनालाइज करना. ठीक है? तो ये चीज़ पे आप आ जाओगे कि मॉक अटेम्प्ट करना, उसको एनालाइज करना, रिविजन करना और अपने वीक टॉपिक्स ढूंढना एनालिसिस से और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना. ठीक है ना? तो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो ये करेंगे. क्या करेंगे? रिविजन करेंगे, मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, वीक टॉपिक्स जो होंगे एनालिसिस से मिलेंगे उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. ये करना है जिनका. अब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो वो हम डिस्कस करेंगे. अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो 20 to 25 डेज वाली वीडियो में मैंने बताया कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, वो फॉलो करो. यस, आप बिल्कुल 15 डेज में भी क्लैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, लीगल एप्टीट्यूड में टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्किप कर दो, बिल्कुल ही बेसिक बुक में से पढ़ो. यूनिवर्सल जो छोटी सी बुक है उसमें से आप पढ़ोगे ये वाला टॉपिक. उसमें मतलब बुक बड़ी है बट ये टॉपिक छोटा दिया हुआ है. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आप लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे. लॉजिकल रीजनिंग में असम्पशंस, आर्गुमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन कोई भी बेसिक बुक में से आप पढ़ सकते हो. इसका PDF मेरी वेबसाइट पे भी फ्री PDF इंग्लिश का शेयर किया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग का शेयर किया हुआ, लीगल एप्टीट्यूड का. तो इन तीनों के लिए तो आपको फ्री रिसोर्सेज में से ही आप अपनी थ्योरी कवर कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी राइट नाउ.
उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स जनवरी टू जून, देखो 2022 के करंट अफेयर्स पे फोकस करो। अगर बिल्कुल कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं किया है तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर 2021 के फॉलो करते आ रहे थे और नोट्स हैं, रिवाइज करना है कहीं से, तो वो करो फॉर श्योर, क्योंकि हमें एक्चुअल में तो जनवरी 2021 से लेकर के जून 2022 की करंट अफेयर्स कवर करनी है, बट क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं, तो हम 2021 क्रॉस कर रहे हैं और ओनली 2022 पे फोकस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आप बेसिक मैथ्स के ये वाले टॉपिक सॉल्व करो, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, और डाटा इंटरप्रिटेशन के ऑनलाइन ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगेन जो 20 to 25 डेज वाली वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें सारा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, प्लस ये बताया हुआ है हाउ टू स्टडी, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं और इन पे अभी हमने फोकस करना है, ठीक है। बात करते हैं कि एम कितना सेट करना है। सेट एन एम, व्हाट वाज द कट ऑफ इन 2022, ठीक है ना। तो हमारे लिए एम कितना होना चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि लास्ट लिस्ट जो हमारी 5th लिस्ट आई थी, ठीक है, उसके अंदर कौन से पर्सन की कितने मार्क्स पे एडमिशन हुई, ठीक है ना। तो NLSIU भोपाल में ये 4th लिस्ट का है, ठीक है। तो NLSIU बैंगलोर के अंदर टॉपर के 125.5 मार्क्स आए 150 में से, ठीक है ना। जो लास्ट इन थर्ड लिस्ट में लास्ट पे जो स्टूडेंट की एडमिशन हुई उसके 101.25 थे। तो 100 प्लस पे पिछली बार NLSIU बैंगलोर मिला बच्चों को, ठीक है। नलसार हैदराबाद मिला 99.5 पे फर्स्ट कैंडिडेट गया, 99 पे लास्ट कैंडिडेट गया। उसके बाद NLU जोधपुर की बात करें तो 5th लिस्ट के अंदर 93.25 वाले को मिल गई थी। GNLU गांधीनगर के अंदर 92.75, 92.75 NLIU भोपाल में, MNLU मुंबई 91.5, RMNLU लखनऊ 87.25, HNLU रायपुर 86, NLU उड़ीसा 82.25। मैं आपको बता दूं ये जनरल कैटेगरी की है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम इस कैटेगरी के, ये देखो आप अपना एम जनरल कैटेगरी वाला ही लगा कर चलो। इसका मतलब अगर आप ये कट ऑफ फॉलो कर रहे हो तो आप हर कट ऑफ में आ ही जाओगे, ठीक है ना। तो एम जो है वो ऊपर के लिए सेट करो, क्योंकि अगर ऊपर का एम सेट करोगे थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा तो एटलीस्ट कोई तो NLU मिलेगा। RJNLU 82.25, 81.5 कोची, CNLU पटना 79.75, 78.5, ठीक है। असम 77, रांची 78.25, तिरुचिरापल्ली 75.75, सोनीपत 74.25, शिमला 74.5, 74.25। तो 74 के अराउंड 75 पे हम कह सकते हैं कि गेम कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी, ठीक है ना। 125.5 से स्टार्ट हुई और 75 पे खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारा था। अब क्या सेम ही कट ऑफ जाते, देखो अगर पेपर इजी आ गया तो मार्क्स ज्यादा स्कोर कर लेंगे बच्चे। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा लेकर आना है, कुछ मार्क्स ऐसा सेट करना है। देखो अगर 100 प्लस का एम रख रहे हो तो वो तो बेस्ट है, तभी मैं 100 प्लस रखवाती हूँ कि 100 प्लस अगर एम करते हैं तो 95, 98, 99 आ गए तो बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि कितना रखें, देखो 95 भी अगर आप एम करते हो, 95 टू 100 एम करते हो तो भी देन यू फॉल इन अ गुड कॉलेज। मतलब यहाँ तक के कॉलेज में एडमिशन होने की बड़े आराम से अच्छे कॉलेजेस में मिल जाती है अगर 95 है। तो 95 टू 100 हमने एम रखना है, ठीक है ना। ये हमने अपने दिमाग में रखना है और हमें अपना बेस्ट देना है। ये नहीं कि तुम्हें लगे ओ मेरे 95 आएंगे, पेपर बहुत ईजी है, 95 हो गए तो बाकी सब छोड़ा है, नहीं, अपना बेस्ट देना है, ठीक है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कई साल पेपर ईजी आ जाता है, वो कहते हैं अरे इतनी ही कट ऑफ जाती है, तुम्हें क्या पता तुम्हारे टाइम पे कितनी जाएगी। तो तुम्हें अपना बेस्ट देना है, बट ये वाली थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, बिकॉज अटेम्प्ट करते हो थोड़ा हेल्प करते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है। कोई और मेरे से किसी और कैटेगरी की कट ऑफ नहीं पूछेगा, सबकी कट ऑफ मतलब अपने दिमाग में तुमने यही रखना है कि 95 टू 100 और 100 प्लस लेके जा सकते हो तो वाह भाई वाह वाली बात है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 95 प्लस आ जाते हैं तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, 5th लिस्ट तक की वेट नहीं करनी पड़ती, बहुत टेंशन से नहीं जाना पड़ता, फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही एक अच्छा कॉलेज मिलता रहता है और उसके बाद तुम ऊपर ऊपर जाते रहते हो, ठीक है ना। तो ये 5th लिस्ट मतलब जब तक लास्ट ऑलमोस्ट लिस्ट आई तब तक क्या कौन कौन से बच्चों के क्या क्या स्कोर थे वो मैंने उठाया है, ठीक है, आपको आइडिया देने के लिए। क्लियर है। तो सभी के सभी क्या लिखेंगे, माई एम इज मिशन 100 पार, है ना। 100 पार लगाना है इस बारी, 100 प्लस स्कोर करना है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस, तो हाउ टू अटेम्प्ट में अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या बात है, सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट है हैवी सेक्शन एंड देन अ लाइट सेक्शन, देन अ हैवी सेक्शन, देन अ लाइट सेक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट।
तो ये भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है द सेक्शन विच यू आर गुड एट, अ सेक्शन विच इज स्कोरिंग फॉर यू, अ सेक्शन विच बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो आप कोई भी स्कीम लगा सकते हैं, ये सब सजेशंस हैं, ठीक है। कोई भी एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि ऐसा करो तो ही सही होता है, नहीं। हमारा हमारा एम क्या है, हमें 100+ लेकर आने, 95 to 100 तो कम से कम लेकर आने हैं। तो ये लेकर आने के लिए हम क्या करें कि इतना स्कोर आ जाए, हमारा क्या सही बैठता है वो हम करेंगे। अब हैवी सेक्शन में फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं इंग्लिश कर लेती हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मेरा ये कि इंग्लिश मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं आरसीज पहले कर लेती हूँ तो मेरा स्कोर जो है वो मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ इतना तो स्कोर हो गया है, ठीक है। उसके बाद पर मैं आरसी करके इंग्लिश करके थक गई तो मैं जीके उठा लूंगी, ये मेरा स्ट्रांग भी है, इसमें से मार्क्स भी आ जाएंगे और लाइट हो जाएगा, तो 10 मिनट का थोड़ा सा वो हो जाएगा, मेरे लिए चिल हो जाएगा। उसके बाद मे बी मेरा लॉजिकल अच्छा है, मे बी मेरा लीगल अच्छा है, तो मैं लीगल उठाकर कर देती हूँ। उसके बाद मैं कहती हूँ चलो अभी थोड़ी देर मैथ्स को 10 मिनट देते हैं और फिर एंड में लॉजिकल कर रही हूँ, या फिर मैं इसको वाइस वर्सा भी कर सकती हूँ, या फिर मैं मैथ्स को एंड में भी लेकर आ सकती हूँ, जैसे मर्जी। तो क्या है, आपको मॉक टेस्ट को क्या बोलना है, आपको मॉक टेस्ट को एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बोलना है। क्या बोलना है, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। और ये सारी सजेशंस दिमाग में रखनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि कौन सा सही बैठ रहा है मेरे लिए, ठीक है ना। हर रोज चेंज करो सीक्वेंस के, आज ये करके देखती हूँ, ये करके देखती हूँ जो, और उसको नोट करो कि क्या था क्या नहीं। तो अपना डाटा इकट्ठा करके उसको देखो, एनालिसिस करो कि कौन सा मेरे लिए सही बैठ रहा है। अगर खुद से एनालिसिस नहीं हो रहा तो आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। 1-on-1 सेशन ₹2000 का होता है, जिसके अंदर आप मेरे साथ 1 to 2 आवर्स के लिए बात करते हैं, स्काइप कॉल करते हैं और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, राइट। तो एक्सपेरिमेंट एंड डिसाइड। तो आपको मॉक टेस्ट का सिर्फ स्कोर नहीं देखना है, मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करने हैं कि मेरे लिए एग्जाम में क्या सही बैठेगा। एंड अगर आप ऐसे करोगे, आई एम 101% श्योर दैट बाय द टाइम आपका एग्जाम होने वाला होगा, आपके पास एक खुद की स्ट्रैटेजी होगी जो आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है ना। हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, किसी और की स्ट्रैटेजी में भी आप पे काम ना करे, तो अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप आंसर अटेम्प्ट नहीं करते हो उसका कोई मार्क्स नहीं कटता, बट अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ये बात सबको पता है, पता होनी चाहिए। उसके बाद सॉल्व द सेक्शंस इन 2 राउंड्स। अब कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होता है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाते हैं। तो हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है, 2 राउंड्स में सॉल्व करना है, एटलीस्ट 2 राउंड्स के अंदर कैसे सॉल्व करना है। 2 राउंड्स के अंदर हमने ये करना है, सेक्शन वाइज 2 राउंड्स कर सकते हो, या पैसेज वाइज 2 राउंड्स कर सकते हो, कि जिसके अंदर आप 100% वाले क्वेश्चंस जो हैं 100% करेक्ट वाले, मतलब मान लो ABCD है, ठीक है, आई एम 101% श्योर कि B आंसर है, ये तो मेरा 100% वाला हो गया कि मुझे कोई डाउट ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन आया जिसके अंदर ABCD है। अब मुझे पता है D तो आंसर नहीं है, A भी नहीं है, अब B और C में से चूज करना है, तो इसको क्या बोलूंगी मैं, 50-50 प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि ये सही हो जाए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का रूल ये कहता है। तो अब मैं 100% वाले तो फॉर श्योर अटेम्प्ट करके आऊंगी, 50-50 वाले भी फॉर श्योर करके आऊंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्लैट का पेपर आपने 2 राउंड्स पैसेजेस में देने हैं या नहीं, या फर्स्ट टाइम के अंदर ही डिसाइड कर लेना है कि ये 100% वाला है या 50% वाला है, या आपको वो क्वेश्चंस विजिट करने हैं जिनको आप छोड़कर आ रहे हो अगर आपके पास टाइम रहता है, ठीक है ना। अब ये भी प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो इन सब की प्रैक्टिस मॉक्स में करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप देखोगे कि मैं कितना टाइम बचा पा रही हूँ, कि क्या मैं उन क्वेश्चंस को रिविजिट कर पा रही हूँ। मे बी आपने एक मॉक टेस्ट किया जिसके अंदर आपने कहा कि ठीक है मैं 40 मिनट्स इस सेक्शन को दे रही हूँ, ठीक है ना, और मैं वापस आऊंगी, बट आपको वो 40 मिनट्स के बाद टाइम ही नहीं रहा कि आप वापस उन क्वेश्चंस पे आ सकते। तो आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगी तभी मैं येस और नो कर लूंगी, ठीक है ना। तो यू हैव टू डिसाइड, अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, but I can tell you what problems you are going to face so that you have answers, you have decisions beforehand, ठीक है ना। तो ये आप करना है, 50-50 वाले जरूर सॉल्व करने हैं, 100% वाले करने हैं। बट अब अगर एक क्वेश्चन है ABCD, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ D को क्रॉस कर पा रही हूँ, ABC में क्या आंसर है नहीं डिसाइड कर पा रही, 3 ऑप्शंस में से मुझे गेस करना है, ये क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व करूंगी अनलेस एंड अनटिल मेरा स्कोर ही अगर मैं काउंटिंग कर रही हूँ तो 30 to 40 स्कोर बन रहा है मेरा, ठीक है ना, 30 to 40 स्कोर बन रहा है। तो फिर मैं ऑब्वियसली मुझे वाइल्ड गेसिंग करनी पड़ेगी, बट अगर मेरा स्कोर बढ़िया बन रहा है, जैसे 95-96 मेरा बन रहा है स्कोर, फिर मैं अपने 100% और 50-50 वाले क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करूंगी,
मैं अपना वाइल्ड गेसिंग नहीं करूंगी, वाइल्ड गेसिंग नहीं करनी है, नो वाइल्ड गेसिंग। और एक और बात, कीप अ काउंट। कीप अ काउंट, काउंट का मतलब ये रखना है कि मेरे कितना स्कोर बन रहा है, मेरे 50% वाले कितने हो गए हैं, 100% कितने हो गए, ये आपको काउंट रखना पड़ेगा कि मेरी स्कोरिंग कितनी चल रही है मेरे हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रैक्टिस आप करोगे मॉक्स में, क्योंकि इतना सबको ध्यान रखना है तो जरूरी है कि प्रैक्टिस करें। एलिमिनेट द ऑप्शन एंड देन ट्राई टू अराइव एट द करेक्ट वन, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, जब एग्जाम आए, जो कि मेरा दूसरा चैनल है जिसपे हम रिविजन टेस्ट करते हैं 5 PM संडे को, तो उसके अंदर मैं आपको बार बार ये बताती हूँ ना कि हर कोई भी सेक्शन है ना, तो बेस्ट वे टू आंसर इज ABCD। अगर दिया हुआ है सभी ऑप्शंस को पढ़ो, रीड ऑल ऑप्शंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम सिर्फ AB तक ही जाते हैं और आंसर CD में होता है, ये गलती नहीं करनी है। और आपको क्या करना है, एलिमिनेट, कि A नहीं है, B नहीं है, D नहीं है, C है आंसर, ऐसे क्रॉस करते जाओगे तो चांसेस ज्यादा है कि करेक्ट आंसर आएगा। अगेन इसकी भी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। ओके, कीप अ काउंट ऑफ 100% करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू ईच सेक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू हाउ टू अटेम्प्ट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये भी सजेशन है, देखो हर किसी के स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शंस अपने अपने होंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर मैं आइडिया दूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 25 to 30 मिनट्स में आप निपटा दीजिए, लीगल एप्टीट्यूड 25 to 30 मिनट्स में ट्राई करिए कि हो जाइए। बट अगर नहीं होता है, 30 to 40 मिनट्स लग रहे हैं, तो देन यू हैव टू माइनस इट फ्रॉम समवेयर, ठीक है ना। जनरल नॉलेज बहुत सारे बच्चे 10 to 12 मिनट्स में कर देते हैं, तो ये 3 मिनट्स जो हैं ये भी आपके काम आएंगे। देखो एक एक मिनट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 3 मिनट्स जो है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर है 30 to 35 मिनट्स ले लो इंस्टेड ऑफ 40 मिनट्स, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, फिर क्रिटिकल रीजनिंग है 25 to 30 मिनट्स, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट आप करोगे अपने टाइमिंग्स। मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन 15 मिनट्स। तो आपको ये जो है देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सेक्शन कितना टाइम ले रहा है। अब बहुत ज्यादा बच्चों के ऐसा हो रहा होगा कि पेपर तो 2 आवर्स का है, कि पेपर जो आपका है वो 2 आवर्स का है, बट आप जो टाइमिंग ले रहे हो वो भी मे बी आप 3 आवर्स ले रहे हो, अभी मॉक टेस्ट करने में 4 आवर्स ले रहे हो, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। अगेन दिस इज सजेशन, आप अपना ऐड और माइनस कर सकते हो। ओके, हाउ टू प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना, वही कि टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को कैसे प्रैक्टिस करें। गिव अ मॉक टेस्ट, प्लान हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू गिव टू ईच सेक्शन, ठीक है। ये अपनी प्लानिंग कर लो कि मैं अपने कितने कौन से सेक्शन को कितना टाइम दूंगी। उसके बाद कीप अ रिस्ट वॉच विद यू, ठीक है। कोई भी वो अपनी डिजिटल वाली वॉच नहीं रखेगा, नॉर्मल वॉच रखना है। इफ इट टेक्स मोर टाइम टू अटेम्प्ट द सेक्शन, कंटिन्यू अटेम्प्टिंग। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है ना, आपने डिसाइड किया था कि इंग्लिश जो है वो 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए, बट इंग्लिश को तो 60 मिनट्स लग गए। होता है, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अच्छी बात है कि ये घर पर हो रहा है, एग्जाम में होता तो क्या करते, कोई ऑप्शन नहीं थी, ठीक है। बट यहाँ पे ये घर पर हो रहा है हमारे साथ, तो 30 मिनट्स की जगह 60 मिनट्स लगे। तो क्या मैं पेपर कंप्लीट करूँ? यस, आप पेपर कंप्लीट करो, 60 मिनट्स लगाओ, बट उसमें अपने साथ में एक पेपर रखो, ठीक है, पीस ऑफ पेपर, वहां पे लिख लो कि इंग्लिश जो है मैंने इतने बजे स्टार्ट किया था और इतने बजे मेरा खत्म हुआ, बस टाइम लिखते रहो, ठीक है ना, कि इतने बजे स्टार्ट किया, इतने बजे खत्म हुआ। और सारा पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करो और देखो कि कौन सा, कि प्लान मैंने क्या किया था, हो क्या रहा है, रियलिटी चेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, रियलिटी में कितने मेरे टाइम लग रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सम सेक्शन 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। ये तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर करके ही आपका ठीक हो सकता है अगर 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा है, बट कई सेक्शन में 30 to 34 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है ना। 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहे हो आप एक सेक्शन के लिए, ठीक है ना, ये टेंशन का काम है नहीं। आपको क्या करना है, आपको सेक्शन वाइज टेस्ट उठाने, जो फेमस फेमस जितने भी, या कोई भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट ले लो, इतने सारे हैं लॉ के, ठीक है। तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा जिस सेक्शन में ले रहे हो उसका सेक्शन वाइज टेस्ट, इवन अगर 5 to 10 मिनट्स भी प्रॉब्लमैटिक लग रहा है तो सेक्शन वाइज टेस्ट लो, सेक्शन वाइज टेस्ट लो बैक टू बैक उन सेक्शंस के, पर्टिकुलर सेक्शन के। मान लो मेरा लीगल एप्टीट्यूड जो है वो 50-60 मिनट्स में हो रहा है, जबकि मुझे उसको 30 to 35 मिनट्स में निपटाना ही निपटाना है, तो मैं सेक्शन वाइज लीगल एप्टीट्यूड के टेस्ट ले लेकर ऑनलाइन सॉल्व करती रहूंगी जब तक मेरा टाइम इतना नहीं आता है, बैक टू बैक, चाहे दिन में 2-2 सॉल्व करो। जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, अल्टीमेटली जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस का वो है, ठीक है ना। और क्योंकि क्लैट के अंदर रीडिंग पार्ट बहुत है,
ठीक है ना, क्योंकि क्लैट के अंदर मेरा रीडिंग पार्ट बहुत है, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, ठीक है, मैं अपना एडिटोरियल पढ़ते हुए अपने आप को टाइम दूंगी कि ये इतना बड़ा एडिटोरियल मुझे 5 से 7 मिनट में पढ़ना है, तो अपने आप को टाइमिंग्स भी देने पड़ेंगे कि 5 to 7 मिनट्स में। और ये भी मेक श्योर करना है कि आप जिस सेक्शन पे ज्यादा टाइम लगा रहे हो, कहीं आप उस सेक्शन को गलत वे से तो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन वाइज जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं अटेम्प्ट करते हुए, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी वजह से तो नहीं टाइम ज्यादा लग रहा, क्योंकि अगर उसकी वजह से टाइम लग रहा है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट चेंज करनी पड़ेगी, तब आपका टाइम बचेगा, राइट। तो एडिटोरियल्स पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा एडिटोरियल्स पढ़ें, पुराने से पुराना न्यूज़पेपर निकालें और उसका एडिटोरियल पढ़ें और अपना टाइम लगाएं, स्टॉप वॉच लगाएं कि इतना टाइम में पढ़ना है। पहले ज्यादा लगेगा पर धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा। देखिए, स्किप एंड स्किम करना पड़ेगा, अपनी आंखें जो है वो सही ढंग से घुमानी पड़ेंगी, तो ये करना बहुत जरूरी है। फोकस जो है पूरा पूरा उधर रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपका फोकस कहीं और है, ठीक है। तो जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। नॉट एबल टू फोकस फॉर 2 आवर्स टूगेदर, ये प्रॉब्लम बहुत आएगी आपको। 2 घंटे के लिए हम एक साथ, 2 आवर्स के लिए मैं एक साथ नहीं फोकस कर पा रही हूँ। कई बच्चों का तो पेपर 3.5 to 4 आवर्स में भी खत्म होगा, मॉक टेस्ट, ठीक है ना, मॉक टेस्ट में इतना टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या करें? अब आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पे। आपने कभी एक छोटे बच्चे को पहली बार स्कूल जाते हुए देखा है? 95% जो बच्चे होते हैं वो बहुत रोते हैं स्कूल जाते हुए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती अपने पेरेंट्स के बिना रहने की, उनको हैबिट नहीं होती अपने घर से इतनी दूर रहने की, ठीक है ना, नहीं होती हैबिट। तो पहले दिन, फर्स्ट वीक बहुत ज्यादा रोते हैं। उसके बाद इवेंचुअली जब उनके वहाँ फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनको अपनी टीचर बहुत अच्छी लगने लग जाती है, उनको वहाँ मजा आने लग जाता है, तो वो स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। मोस्टली बच्चे सेटल हो जाते हैं स्कूल में, ठीक है। तो आपके ब्रेन ने कभी इतनी देर बैठकर दिमाग ही नहीं लगाया, ठीक है ना, और वो भी ऐसा मतलब पूरा पूरा अपना फोकस कभी दिया ही नहीं किसी चीज को, तो उसको भी प्रैक्टिस नहीं है दिमाग को। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो वैसा हो जाएगा। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा, दी क्या हम इसके लिए ड्रॉप लेना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो ब्रेन की प्रैक्टिस है, ये लास्ट के डेज में ही होती है। आपके पास अभी भी टाइम है, आप बिल्कुल बिल्कुल इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए प्रैक्टिस करें। अटेम्प्ट मॉक्स डेली इफ दिस इज योर प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम है तो डेली मॉक्स अटेम्प्ट करें। रीड मोर एंड मोर, ठीक है। उसके बाद फोर्स योरसेल्फ टू कंसंट्रेट, आपको अपने दिमाग को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी कि भाई कंसंट्रेट करो। एग्जाम जब होता है और सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो एक रात पहले नॉर्मली जिस टाइम तक आपको बहुत ज्यादा नींद आ जाती है, आप कभी उठ नहीं पाते हो, उस टाइम पे भी आप पूरा अपना फोकस करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि कल एग्जाम है, अगर नहीं पढ़ोगे तो खराब हो जाएगा काम, करते हैं ना हम अपने आप को फोर्स करते हैं। जबकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो हम सोच भी नहीं सकते, वो तभी होता है जब एग्जाम से एक रात पहले या एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही होता है। तो क्या है, हमें अपनी पावर्स ही नहीं पता है। हमें अपनी पावर ही नहीं पता कि जो हमारा दिमाग है वो इतनी देर से भी ज्यादा फोकस कर सकता है, बट हमने उसको ट्रेन ही नहीं किया उस वे में, ठीक है ना। तो जब हम उसको ट्रेन कर देंगे कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर वो करेगा, ठीक है। क्रिएट अ हैबिट, क्रिएट अ हैबिट। डू वी हैव टू हैव द टाइम टू इम्प्रूव? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यस। ये सब चीजें जो हैं, जो माइन्यूट हम हाउ टू अटेम्प्ट में घुसते हैं, ऑब्वियसली ये लास्ट डेज में ही होता है। क्योंकि आप देखते हो, आप पहले सिलेबस खत्म करते हो, वीक टॉपिक्स भी करते हो साथ साथ, तो ये सब लास्ट डेज में ही होता है। सभी बच्चे अभी इंप्रूव करते हैं। जो मेरा पिछला बैच था, उन्होंने भी लास्ट के डेज में ही इंप्रूवमेंट करी थी, एंड आज की डेट में वो एनएलयूज में बैठे हैं, ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हो अगर वो कर सकते हैं। उनके कोई स्पेशल तो था नहीं उनके पास भी, आप मतलब अगर स्पेशल उनके पास दिमाग में है तो वो आपके में भी है। सबका दिमाग ऐसा ही है, आपको ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है ना। कईयों ने ट्रेन कर लिया, आपने नहीं किया, तो आप अभी कर लो, टाइम है आपके पास, ठीक है। जो एक क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, कि मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। देखिए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करें, उसके लिए मैंने हाउ टू सॉल्व मॉक पेपर्स की वीडियो करी हुई है, वो देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल रीसेंट वीडियो है। फाइंड आउट द टॉपिक्स ऑफ विच द क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग रॉन्ग, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होंगे, मान लीजिए आपने 4 मार्क्स दिए, ठीक है ना, 4 मार्क्स में आपने देखा कि मेरे ये वाले जो टॉपिक्स है ना, बार बार गलत हो रहा है। ये वाला टॉपिक, मान लो मेरा लॉजिकल रीजनिंग का अजम्पशन जहाँ पे पूछ लेते हैं वो गलत हो रहा है, ठीक है। या जहां पर भी मेरे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेन थीम का क्वेश्चन आ जाता है ना, वो मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा इतनी माइल्यूट, अच्छा ठीक है, मेरा अजम्पशन गलत है तो मैं अजम्पशन उठाऊंगी, उसकी थ्योरी दोबारा पढ़ दूंगी। थ्योरी मतलब अब क्या है, एक पहला स्टेप क्या होगा, मान लो मेरे पास लिस्ट ये होगी कि एक तो मैं मेन थीम वाले क्वेश्चंस गलत कर रही हूँ,
ठीक है। दूसरा मैं अजम्पशन वाला टॉपिक मेरा गलत हो रहा है, ठीक है। मैथ्स के अंदर जहां पर भी सरफेस एरिया वॉल्यूम आता है वो गलत कर देती हूँ, परसेंटेज भी मेरा गलत ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा करंट अफेयर्स के अंदर मे बी कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे रह रहे हैं, वो टॉपिक्स मैंने लिख लिए कि मुझे जीके के टॉपिक्स मिले हैं, ये मैं जीके के टॉपिक्स मुझे स्टडी कर लेने चाहिए, मॉक्स में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और लीगल एप्टीट्यूड के अंदर मे भी मेरे को ये प्रॉब्लम कुछ आ रही है, मे बी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे से लॉ जो है उसमें मैं थोड़ा सा इधर उधर हेरफेर कर जाती हूँ जब मुझे एनालिसिस करना होता है। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास ये लिस्ट आ गई कि ये मेरे जो हैं ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। टॉपिक्स लगा लो कुछ भी। अब इसमें से मैंने देखा कि सबसे ज्यादा मैं अगर मार्क खाऊंगी तो किस में खाऊंगी, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट वाले पार्ट में मुझे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो मेरा ये ठीक हो सकता है। डिफिकल्ट है बट ठीक हो गया तो मेरा एक सेक्शन इंप्रूव होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मे बी मैं ये कर दूं, ठीक है। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि ये तो बहुत ही छोटी चीज है, अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे आराम से 2 से 3 मार्क्स इसमें से आ सकते हैं, मेन थीम का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर मैं ये करूंगी। अब जब मैं करूंगी तो मैं इसकी थ्योरी सारी पढ़ूंगी दोबारा से और इसको प्रैक्टिस करूंगी बार बार, थ्योरी पढ़ूंगी प्रैक्टिस करूंगी। उसके बाद मैंने उठा लिया अजम्पशंस की, अजम्पशन भी मैं फिर जो जो टॉपिक मेरा वीक है मैं उसकी दोबारा से जीरो से थ्योरी पढ़ूंगी, जीरो से, एज इफ मैं फर्स्ट टाइम ये टॉपिक कर रही हूँ। कैसा ट्रीट करूंगी इस टॉपिक को, एज इफ मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो ऐसी लिस्ट जब होगी कि जहां जहां मैं गलतियां कर रही हूँ मैं उसको टॉपिक को पकड़ कर ठीक करके उसको जो जो मेरी वीकनेस है मैं उन वीक पॉइंट पे काम करूंगी एक एक करके, तो ऑब्वियसली मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। दिस इज कॉमन सेंस, ठीक है। और वो हमें लगानी है, ठीक है। तो ये आपको करना है मॉक्स का स्कोर बढ़ाने के लिए। बार बार मॉक्स देते रहोगे, अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। स्टडी दोस टॉपिक्स फ्रॉम स्क्रैच, कौन से वीक टॉपिक, सेक्शन वाइज ट्रिक्स एंड टिप्स, ठीक है ना। सेक्शन वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट विदाउट द आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चंस को पढ़ें पहले, विदाउट द आंसर्स क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है ना। पैसेजेस में मतलब ऑप्शंस नहीं पढ़नी, सीधा क्वेश्चन पढ़ो 10 to 20 सेकेंड्स में, ठीक है। मैक्सिमम इतना टाइम ही दे सकते हो, एंड देन रीड द पैसेज। तो इससे क्या होगा, अगर हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या चीज हमें आंसर करनी है, किस टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप के माइंडसेट से हम पैसेज पढ़ेंगे। मार्क द लाइन वे यू थिंक द आंसर टू द क्वेश्चंस कैन बी फाउंड, ठीक है ना। जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आंसर हो सकता है, उनको मार्क कर लो, लाइन को अपने साथ पेंसिल लेकर जाओ। आफ्टर रीडिंग द पैसेज कम टू द क्वेश्चन एंड रेफर बैक टू द पैसेज व्हेन रिक्वायर्ड। अब क्या है, बहुत बच्चों को लगता है कि एक बार हमने पैसेज पढ़ लिया तो वी कैन नॉट रेफर बैक क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। नहीं, रेफर तो करना पड़ेगा। तो रेफर 2 and 4 होगा कि बैक एंड फोर्थ आप जाओगे, ठीक है ना। तो आपको वो करना पड़ेगा कि आपने पहले पूरा पैसेज पढ़ लिया फटाफट से, उसके बाद पहले क्वेश्चंस पढ़े। नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चंस पढ़े, विदाउट ऑप्शंस क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ा, ठीक है। पैसेज में अंडरलाइन किया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दोबारा पढ़े विद ऑप्शंस, ठीक है। फिर पैसेज पे गए जहां पे लग रहा है कि आंसर है और फिर आंसर किया। ये होगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। ऐसे आपको सॉल्व करना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। मार्क एनीथिंग स्पेसिफिक आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स लिखा है, ठीक है, अज्यूम लिखा है, ठीक है, फेवर, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज किया है तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में मेन चीज पूछी क्या है, ठीक है ना। वो क्यों कि हमें नहीं तो क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ेगा, बट अगर हम अंडरलाइन कर लेंगे तो हमें बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फॉर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रीड द इंटायर लाइन, ठीक है ना। जब हमें पैसेज बेस्ड वोकैबुलरी ही आती है, जब क्या आती ही पैसेज बेस्ड वोकैबुलरी है क्लैट के अंदर, तो पैसेज बेस्ड वोकैबुलरी में मेरा वर्ड अगर यहाँ पे तो ये पूरी लाइन, इसकी पिछली वाली लाइन और इसकी अगली लाइन भी पढ़ लूंगी, इसका इस वर्ड का मीनिंग गेस करने के लिए कि हाँ ये मीनिंग मुझे लग रहा है, ठीक है ना। फिर ऑप्शन में क्रॉस आउट करके आप ऑप्शन निकालने की कोशिश करोगे अगर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो, राइट। तो ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स हैं। बात करें लीगल रीजनिंग, तो लीगल रीजनिंग के अंदर यू हैव टू फाइंड द लॉ, ठीक है ना। लॉ ढूंढने के लिए अगर पहले फटाफट से क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस पढ़ लोगे तो बहुत सही रहेगा कि मार्क करें। तो एक आइडिया ही इकट्ठा करना है, डिटेल में क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो पैसेज पे जाना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो ये भी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हमें ढूंढना क्या है, कि क्या पूछ क्या रहे हैं, क्या आंसर क्या करना है इस पैसेज में से हमने।
ठीक है। तो इसेंशियल जो लॉ जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर हमें लॉ प्रोवाइड किया हुआ है पैराग्राफ में, उसको मार्क कर लो, ठीक है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लग रही है कि हाँ ये वर्ड जो है ना ये चेंज कर सकता है सर्कमस्टांसेस। इफ प्रिंसिपल नॉट प्रोवाइडेड क्लियरली देन मार्क द लॉ इन द पैसेज, रीड द क्वेश्चंस ओनली नॉट द ऑप्शन, यू शुड हैव एन आइडिया दैट व्हाट द क्वेश्चंस आर अबाउट, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर लीगल रीजनिंग में रहेगा। मैथ्स में नीट कैलकुलेशन करें क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, एक ही पैसेज एक ही डाटा है और उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। तो ये नहीं पता कि पिछले वाले क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे लेकर जानी हो या वो रिक्वायर्ड हो। तो अगर नीट कैलकुलेशन होगी तो टाइम सेव होगा। नीडेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, इसलिए नीट कैलकुलेशन करें। करंट अफेयर्स में यू कैन स्किप द पैसेज एंड डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। अब करंट अफेयर्स में, क्लैट के करंट अफेयर्स में पैसेज पढ़ने की मोस्टली ज़रूरत नहीं होती। जब वो ऐसे वन करके डाल देते हैं ना तो वहां पर हमें वो पूछ लेते हैं कि बताओ ये वन का क्या यहाँ पे क्या आना था, ठीक है ना कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, तब हम ढूंढ लेते हैं कि वन कहाँ पर है, वो पढ़ लो एंड आंसर दे दो। तो पैसेज, क्योंकि पैसेज करंट अफेयर्स मोस्टली बस आप टॉपिक देख लो, हाँ कौन सा टॉपिक है ये है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दे दो। तो करंट अफेयर्स तभी हमारे 10 to 12 मिनट्स में सॉल्व हो जाते हैं और हम 30 to 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर हमने अच्छी प्रिपरेशन करी हुई है करंट अफेयर्स की, ठीक है। बोनस टिप्स की अगर हम बात करें तो रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली। मतलब क्वेश्चन, और जब आप अटेम्प्ट करने पे आ गए हो, जब हमने पैसेज पढ़ लिए तो जब अटेम्प्ट कर रहे हो आप तो क्वेश्चंस पढ़े, अच्छे से पढ़े। रीड ऑल द ऑप्शंस, रीड ऑल द ऑप्शंस, ठीक है ना। ये नहीं कि पहली ऑप्शन पढ़ी और बाकी सब नहीं पढ़ा, ये गलती हम कर जाते हैं जल्दी जल्दी में। फिल दो OMR शीट, बहुत बच्चों को OMR शीट भरने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो OMR शीट घर में भरने की प्रैक्टिस कर जाएं। लिंक आपको दे दूंगी जहाँ पे मैं OMR शीट आपको प्रोवाइड कर लूंगी, प्रिंट निकलवा लीजिए। नो व्हेन टू जंप द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कई बार क्या होता है, देखिए एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर जो है वो हमारे दिमाग के साथ भी खेल रहा है, ठीक है ना। माइंड गेम खेलता है वो, माइंड गेम खेलते हैं या खेलते जो भी है, माइंड गेम क्या खेलते हैं वो, ठीक है। अब आपको वो डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देंगे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, हमें लगेंगे ये तो हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है। देखिए वो जानबूझ के डाले हैं क्वेश्चंस कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। तो आपको वहां पर नहीं रुकना है, जो क्वेश्चन आपको टाइम वेस्ट क्वेश्चन लिख रहा है उसको आपको मिस करना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी है, हमारे पास पूरा पूरा टाइम है, कमी नहीं है, वी हैव इनफ टाइम बट वी हैव टू यूज इट प्रॉपर्ली, ऐसा बोलो, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालेंगे, ठीक है, मे बी वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द पेपर में डाल दे, स्टार्ट में ही डाल दे, ताकि जो बच्चा है उसका दिमाग घूम जाए और उसका सारा पेपर खराब हो जाए। हम ये तो भूल ही जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमें आते होंगे, इतनी पढ़ाई करी है हमने, ठीक है। तो इसलिए वो हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, बट हमें उनको नहीं खेलने देना। नो वरीज, ठीक है। देखो टेंशन तो लेनी नहीं है, बिल्कुल नो टेंशन, ओनली हैप्पीनेस, ओनली एंथुजियाज्म कि एग्जाम देने जा रहे हैं। हाउ टू हैंडल वरी, एंजाइटी और शॉक। देखिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हमें जब भी वरी, एंग्जाइटी, ठीक है ना, होती है तो हमने क्या करना है, वी हैव टू टॉक टू आर एंग्जाइटी कि हो क्यों रही है, आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है ना। हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि भाई ऐसा हो गया तो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है बच्चों के दिमाग में, इफ नॉट क्लैट, ठीक है ना, इफ नॉट क्लैट। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो कोई बैकअप ही नहीं रखा है, वी हैव नो बैकअप, ठीक है ना। कईयों के पास बैकअप है कि अच्छा ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे। अब नहीं बैकअप है तो सबसे इजी सोल्यूशन तो यही है कि आप ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद 3 ईयर लॉ के लिए जा सकते हो, या कुछ बच्चे ड्रॉप के लिए वो करेंगे, तो ठीक है ना। देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, अगर टेंशन लोगे तो हम भी चिंतन शिविर करते हैं, कांग्रेस करती है ना चिंतन शिविर, तो हम भी क्लैट चिंतन शिविर रख लेते हैं जिसमें हर कोई आकर बहुत बहुत टेंशन करेगा और फिर उनका पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं, अगर हम वरी या एंजाइटी कर रहे हैं तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, टाइम वेस्ट। तो हमें जब भी, और आएगी भी है, आती भी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमने अपने आप को रिमाइंड, चेंज ऑफ थॉट, ठीक है, हमने अपने आप को रिमाइंड करना है कि देखो मेरा जो एम है पेपर देने का वो क्या है, वो एम क्या है मेरा, कि मुझे 100% देना है अपना, और 100% क्या है कि जो मेरे पास टाइम है अभी उसके अंदर मुझे स्मार्ट वर्क, स्मार्ट प्लानिंग करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, जो लॉगरी बोल रहा है वो करके देखना है और वो करना है, ठीक है ना। टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। और हाँ, दूसरी ड्यूटी मेरी क्या बनती है कि मेरा कोई रिग्रेट ना हो, नो रिग्रेट, ठीक है ना। तो वो रिग्रेट कब नहीं होगा, जब मैं पूरा पूरा अच्छे से टाइम का यूज करूंगी, ठीक है ना। और एंग्जाइटी को बोलना है देखो अभी मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, एग्जाम के बाद में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखो किसी का, देखो अब क्लैट है, ठीक है ना, किसी का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्लैट है, किसी का क्लियर हो गया और किसी का नॉट क्लियर, ठीक है ना, नहीं हुआ क्लियर। अब मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बहुत बार ये स्टोरी सुनाई है कि मेरे पास 2 बच्चे आए थे, एक लड़की थी ए और एक लड़की थी बी।
ए की एडमिशन जो थी वो NLSIU बैंगलोर में हो गई, ठीक है ना। बी की एडमिशन कहीं पर भी नहीं हुई और उसने बैकअप भी नहीं सोच रखा था। उसको बहुत बार बोला था कि भैया बैकअप सोचो, नहीं सोचा, क्योंकि उसको ये था कि मेरी तैयारी अच्छी है, या वो ए को कॉपी कर रही थी कि ए ने तो कोई बैकअप रखा नहीं तो मैं क्यों रखूं। तो ए की तो हो गई NLSIU बैंगलोर में, बट बी के कहीं पे भी एडमिशन नहीं हुई। तो बी ने क्या किया, बी ने बीए कर ली, और फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से लॉ कर ली, ठीक है ना, एक अच्छे 3 ईयर इंस्टीट्यूट से लॉ कर ली, ठीक है। अब बी ने अच्छे इंस्टीट्यूट से लॉ कर ली। अब क्या हुआ, बी ने गिव अप नहीं किया, अगर बी यहाँ पर कहती कि अरे ये क्या हो गया, मैं बीए कैसे करूँ, बीए भी बहुत अच्छा नहीं है ये वो, बट उसने 3 ईयर लॉ में पूरा मेहनत करके यहाँ से किया, और 3 ईयर लॉ में और मेहनत करके अल्टीमेटली जो NLSIU बैंगलोर की लड़की थी, जो 5 इयर्स बाद जिस कंपनी में पहुंची, ठीक है ना, बी वहां पर सेम में 3+3 2, हाँ 7 इयर्स के बाद उस कंपनी में पहुंच गई। पर बी ने बहुत मेहनत करी, ठीक है ना, बी ने वो चीजें करी जो नॉर्मली बच्चे नहीं करते। अब एक लड़की थी सी, वो डिप्रेशन में चली गई कि अरे मेरा तो जिंदगी खत्म हो गई, डिप्रेशन में चली गई कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। तो सी की शादी हो गई, मैरिज हो गई, ठीक है ना, उसने नॉर्मल बीए करी, उसने जॉब भी नहीं करी, उसकी शादी हो गई, ठीक है ना। अब डी एक लड़का था, डी भी डिप्रेशन में चला गया था, ठीक है ना, डी डिप्रेशन में गया, उसने अपनी जिंदगी 2 से 3 साल खराब किए, तो वो अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, बिकॉज क्योंकि उसने सोचा कि अब मेरे पास, क्योंकि मेरा क्लैट क्लियर नहीं हुआ, मेरी सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, क्लैट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, NLU में एडमिशन हो जाता है तो जिंदगी ईजी हो जाती है, मेहनत करते हो तो उसका फल मिलता है वहां पर जाकर, बट अगर नहीं भी क्लियर होता है तो जिंदगी खत्म नहीं होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे जिनकी लाइफ क्लैट क्लियर करने से भी बनी है, और जिन्होंने क्लैट नहीं क्लियर किया बट उन्होंने गिव अप नहीं किया अपनी जिंदगी पे, उन्होंने हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा, तो वो अपनी जिंदगी में सेट हुए, वो अपनी जिंदगी में उन्होंने कुछ अचीव किया, ठीक है ना। तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें एंथुजियास्टिक रहना है कि मुझे 100% देना, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती थी मैंने नहीं किया। तो आपने क्या करना है, 100% देना, चाहे हमें बाद में ग्रेजुएशन किसी और चीज में करनी पड़े, या हमें ड्रॉप करना पड़े, या हम 3 ईयर लॉ के लिए जाएं, या हम ऑल टुगेदर अपना प्रोफेशन चेंज कर लें, वट एवर। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, क्लैट पे कर रहे हैं, क्लियर करने की कोशिश 100% करनी है, और वो हम करेंगे, दैट इज आवर ड्यूटी, ठीक है। तो जब भी फियर एंग्जाइटी है तो अपने आप को बोलो मुझे 100% देना, ताकि मुझे कोई रिग्रेट ना हो, मेरे अंदर एक इंथुजियाज्म, एक पॉजिटिव इंथुजियाज्म होना चाहिए कि ये मैं एग्जाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे आगे लाइफ में बहुत काम आएगा, इवन इफ अगर हम इसको नहीं क्रैक कर पाते। तो एंग्जाइटी और वरी को भगाने का यही बेस्ट तरीका है। टॉक टू योरसेल्फ, सिट अलोन, ठीक है, जर्नलिंग करो, लिखो क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिमाग वो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, नो टाइम वेस्ट, इट इज जस्ट टाइम वेस्ट, ओके। और टाइम हमारे पास वेस्ट करने के लिए तो है नहीं, उसका हमें प्रॉपर यूज करना है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, एंड डू टेल मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन Instagram. I'm there by the name @IamLoggery. You can also book a one-on-one session with me, which is a paid session. The link is going to be in the description box. You can check that out. That's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. All the very best. डरने वाली कोई बात ही नहीं यार, तुम लॉगेरियन हो, अपने दिल पे रख कर बोलो हाँ लॉगेरियन हूँ, अपना बेस्ट देकर आऊंगी बस, और कुछ नहीं करना। दैट इज वॉट इज माई ड्यूटी। अगर मैं अपना 100% देती हूँ तो आई एम अ विनर, ठीक है ना। और लाइफ में गिव अप तो करना ही नहीं है, बहुत कुछ है यार लाइफ में, बहुत कुछ, ठीक है ना। तो एक एग्जाम है, ठीक है, उसको अच्छे से देना है, बस ये मेरी ड्यूटी है। दैट्स इट, ओके, बाय एंड टेक केयर। लॉगरी साइनिंग ऑफ।